Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 24th lecture. I'm your host, Dr. Khurram Shahzad Mughal. Now, where are we? In the last lecture, we were discussing another technique of forecasting. Where were we? We were actually discussed one of another examples, which was related to what we discussed in the lecture before that. Classical time series decomposition. Classical time series decomposition is when we have forecast is equal to trend multiplied by seasonal index multiplied by cyclical index multiplied by residual index. Now in that example, actually why we discussed that example again at once, that I thought that it was important to go through one of another examples of classical time series decomposition, because as I highlighted that classical time series decomposition is one of the maximum used methods for you can say forecasting, and I hope you know that why forecasting is important. We have discussed that, and secondly we have I guess discussed that in very much detail, so we don't need to go through that again, but it is important, keep that in your mind. Now moving on, in classical time series decomposition we took it from there, where we use actually first of all we try to capture the trend. First we try to capture the trend. How we capture the trend is that we regress the t variable, which is like number of observations that we have actually, we call it trend. So t variable on our dependent variable, that is usually the sales data. So for that we have an equation for trend, that is a single variable regression. Then we compute seasonal indexes, and when we multiply the trend calculated values, the projected values, with the seasonal index, we have a solution, we have forecast. Why? Because we assume that cyclical variations and residual index is equal to 1. So that is how we manage that. We basically multiply trend with seasonal index. Then we discussed regression analysis. Why I repeated that example again? For two reasons. One, it is very important. I've already mentioned that. Second, that with that we moved on to regression analysis. When I said that we regress t on the sales data, then with regression we find other causal variables. We find variables like, for example, those variables that have effect on sales data. Might be population, might be increase in income levels, might be change in taste, might be any variable, and how we capture it. It can be a quantitative variable, it can be a qualitative variable. Then we do multiple regression analysis. It is basically we regress all these independent variables on the sales data. Once we have done that, we can project future forecasts. So that is how that is why I linked it with classical time series decomposition, because one part of classical time series decomposition is a single variable regression. Then there is a multiple variable regression, in which multiple independent variables are supposed to have an effect, are expected to have an effect on the dependent variable. In the case of forecasting, basically the dependent variable is sales data, are the projected sales or sales. Then I also discussed, as I had highlighted at the start of the forecasting lectures, that it is possibility, and this is what usually happens, that firms use multiple methodologies. They might use qualitative methodologies and a number of qualitative methodologies. They might use quantitative methodologies and might be a number of quantitative methodologies. And then we defined a methodology in which we could you can say calculate an average forecast. But the great thing about this is, the most interesting thing is that it is average weighted forecast. When we say average weighted forecast, then the first question that comes into mind, that if we have multiple models and we have, let's say, forecasted, for example, for the month of February, then the question is that how much weight to assign to each of the forecasts. Then that is the main question that we have to answer. And for that, once we have forecast from the multiple models, we also have another thing, that is error in each model. Because once a model forecast, you can, because you're doing it from a historic data perspective, then once you have forecast for each period, you can also calculate error in case of each model, that how much it deviates from the actual sales. That deviation is captured, and that is the error of that model. If we have errors of those models, or average errors of each model, what we do is that we calculate their total, and we see that how much each one of them contributes to the total error.
and with that we have numbers for each you can say model. Their sum is 1. The sum of these numbers is 1, and the aim is to see basically how much each model has contributed to the error. Then we inverse this. Basically, inverse would intuitively mean that if this is how much they have contributed to the error, then this is how good they are. We have that inverse value. So that now gives us, you can say, the strength of each model, how strong it is, how good it is in predicting the sales. We sum that up and we calculate its percentage. We calculate its percentage, or in other words, we divide it by the total goodness of all the models, and then we have the weight. These are the weights that would be used while calculating weighted average forecast when we have multiple methodologies of calculating the forecast. This was the most interesting part. This was the most important part. Okay. Then basically when we started forecasting, we said that we have few different types of demand, because the method of forecast depends on the type of the demand of the product. अगर एक product की demand for example discrete है, derived demand है, derived demand को आपने different तरीके से forecast करना है. डिराइव डिमांड क्योंकि किसी और प्रोडक्ट की डिमांड से डिराइव्ड है, तो जितनी वो डिमांड की जाएगी इतनी आपकी उतनी प्रोडक्ट डिमांड की जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉम्प्लीमेंट्स की बात की थी, या रादर हमने इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड. जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा की लेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फिलामेंट है जो बल्ब के अंदर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर लगती है. ये अगर फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि कोई और मैन्युफैक्चरर बना रहा है, तो फिर जितनी एक फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की डिमांड है उसी से डिराइव की जा सकती है उसकी डिमांड. तो उस मोबाइल फ़ोन कंपनी को जितने ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, अगर आप उसकी वो इन्वॉइसेस खोल के देख लें, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि आपने कितनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बनानी है, प्लस डेफिनेटली सम फॉर द स्पेयर पार्ट्स. तो इसका मतलब ये कि डिराइव डिमांड तो आप एक डिफरेंट, यू डोंट नीड दीज फोरकास्टिंग टेक्निक्स, टाइम सीरीज डाटा. फिर एक होती है इंडिपेंडेंट डिमांड. इंडिपेंडेंट डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल टी की डिमांड, पेप्सी की डिमांड, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, वॉल्स आइसक्रीम की डिमांड, फॉर एग्जांपल लिप्टन येलो लेबल की डिमांड, मिल्क पैक की डिमांड, ऑलपर्स की डिमांड, टूथपेस्ट की डिमांड, लक्स सोप की डिमांड, ऑल दीज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूटिलाइज्ड रेगुलरली. टी शर्ट्स की, स्वेटर्स की, जीन्स की, इन सारी चीज़ों की डिमांड, अम्ब्रेलास की डिमांड इन द समर सीजन, ये सारी इंडिपेंडेंट डिमांड है. ये हर इंडिपेंडेंट डिमांड यूजुअली ऐसी डिमांड होती है जो लार्ज, फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल बहुत सारे लार्ज स्केल नहीं, रादर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड एक्यूमुलेट करके बनती है. इन फर्म्स को इंडिपेंडेंट डिमांड फेस करनी पड़ती है. डेफिनेटली देयर आर सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन इट एंड देयर इज अ ट्रेंड इन इट, जिसको हम फिर हिस्टोरिक डाटा के थ्रू और टाइम सीरीज टेक्निक्स को यूज़ करके करते हैं. फिर उसके अलावा हमने क्वालिटेटिव टेक्निक्स को डिस्कस किया. क्वालिटेटिव टेक्निक्स वो वाली हैं जैसे फॉर एग्जांपल डेल्फी मेथड था, फिर मार्केट एक्सपेरिमेंट्स थे, फिर कंज्यूमर क्लिनिक्स थे. अगेन जब ये चीज़ें मेरे जहन में आती हैं तो साथ मेरे जहन में ये भी बताना आपको लाजमी आ जाता है कि वी नीड टू फोरकास्ट प्राइसेस ऑल्सो. हमने प्राइस में फ्लक्चुएशन से भी क्वांटिटी में क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं, तो वी नीड टू सी दैट एज वेल. सो बेसिकली आखिर में हमने एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डिस्कस किया विच इज़ लंपी डिमांड. देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कि जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जिनकी डिमांड इधर ख़त्म हो रही है, जो अपनी लाइफ साइकिल के एंड पे आ गए हैं, जो बहुत लाइफ साइकिल के स्टार्ट के ऊपर है, जो नई इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, ऐसी भी प्रोडक्ट्स मतलब उनकी डिमांड किसी टाइम पे ओरिजिनेट कर सकती है. लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस या रेगुलर पैटर्न है उसके अंदर कोई. इफ़ देयर इज़ नो रेगुलर पैटर्न देन यू कैन नॉट यूज़ हिस्टोरिक डाटा टू प्रेडिक्ट द डिमांड. इफ़ देयर इज़ नो रेगुलर डिमांड, तो जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं उनमें से काफ़ी सारी नहीं यूज़ की जा सकती हैं उसके अंदर, राइट. तो इन दैट केस देयर आर एक्शंस दैट बेसिकली व्हेन फोरकास्टिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते उन ये जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी की है. क्वालिटेटिव नो डाउट उसमें से कुछ ना कुछ यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन मार्केट एक्सपेरिमेंट तो अब तब करेंगे व्हेन देयर इज़ अ मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट.
या आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करके कंज्यूमर क्लिनिक में आप चेक कर सकते हैं। आप मल्टीपल मेथड्स हैं, एक्सपर्ट्स किए जा सकते हैं, कस्टमर्स को सर्वे किए जा सकते हैं, देयर आर मेथड्स फॉर दैट। लेकिन ये वो वाले आप मेथड्स हैं जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप डाटा के बेस से फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो जब आप डाटा के बेस से फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, देन व्हाट यू डू, नंबर 1, सीक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स, यानी कि आप सर्वे कंडक्ट करें। जब एक प्रोडक्ट की एक लंपी डिमांड एग्जिस्ट करती है या प्रोडक्ट दूसरी फोरकास्टिंग टेक्निक्स में नहीं आ सकती, दैट वुड मीन कि आप कस्टमर से सर्वे करें प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारी टाइप की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैव यू सीन वो जो पुराने ज़माने के रिकॉर्ड्स होते थे जिनको प्ले किया जाता है, जो आस्ते आस्ते घूमते हैं और उनके ऊपर पेन होती है, दोज आर स्पेशलिटी आइटम्स। मेरा नहीं ख्याल कि वो आजकल भी रेयर ही बनते होंगे, वो कोई कस्टमर होगा जो उसको लेता होगा, राइट। तो वो दैट माइट बी अ डिफरेंट थिंग। कुछ ऐसे फर्नीचर के टाइप्स हो सकते हैं जो बड़े स्पेसिफिक हैं। रोल्स रॉयस फॉर एग्जांपल, आप मैन्युफैक्चर रूटीन में होते हुए इन्वेंट्रीज उसकी नहीं देखेंगे ना, वो लार्ज स्केल में सप्लाई की जाती है, चंद रेयर लोगों के पास वो एग्जिस्ट करती हैं कुछ स्पेसिफिक गाड़ियाँ। तो इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक वो ज़्यादा भी उनसे मांगी जा सकती है, कम भी मांगी जा सकती है। तो नाउ बेसिकली हम ऐसी प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका आपने डिमांड आप इतनी आसानी से उसकी डिमांड फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो एक उसमें मेथोडोलॉजी के अपने कस्टमर से डायरेक्टली अप्रोच कर लिया जाए। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, आप कह सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ मशीन्स को आप सर्विस करते होते हैं हर कुछ टाइम के बाद, या फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस करते होते हैं। वो ऐसी डिमांड है कि आप एकदम इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल आपकी जो फैसिलिटी है उसको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, और मतलब आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। सो इन दैट केस अगर मशीन ख़राब होगी तो आपका बंदा जो है वो रिपेयर करेगा। तो यू कैन गो एंड टॉक डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें उनके साथ। फिर आप कोलैबोरेट विद अदर चैनल मेंबर्स, कि आपकी जो पूरी सप्लाई चेन है, अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन के अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री वाला केस आ जाता है आपका उसमें, क्योंकि एक फर्म पॉसिबिलिटी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हो, जब एक फर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसकी डेफिनेटली सप्लाई चेन तो एग्जिस्ट कर रही है। इफ़ देयर इज़ अ सप्लाई चेन, पूरा प्रोसेस उसका जा रहा है, तो दैट वुड मीन कि आप डिफरेंट चैनल मेंबर्स के साथ डिस्कस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट दैट। दे आर ऑल्सो द एक्सपर्ट्स, क्योंकि वो भी उस बिजनेस एंटिटी में काम करते रहे। अप्लाई फोरकास्टिंग मेथड्स विद कॉशन मे वर्क वेयर फोरकास्ट एक्यूरेसी इज नॉट क्रिटिकल, यानी कि आप उन फोरकास्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करें लेकिन बहुत एहतियात से यूज़ करें। मतलब उस तरह कॉन्फिडेंस से आप नहीं यूज़ कर सकते इन फोरकास्टिंग टेक्निक्स को। उसमें जो अगर वो ऐसी प्रोडक्ट की, फिर उसके अंदर एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, यानी कि जो आप फोरकास्ट करके लाएंगे उस मेथड से, जिस मेथड से भी आप, चाहे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या कोई भी फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव इवन की टेक्निक यूज़ करते हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल नहीं है आपके लिए, देन यू कैन यूटिलाइज दैट मेथड। डिले सप्लाई रिस्पॉन्स अंटिल डिमांड बिकम्स क्लियर, वो जो हम डिले का प्रोसेस, पोस्टपोनमेंट वाला प्रोसेस पढ़ते आए हैं, खैर वो तो हम बनी हुई प्रोडक्ट्स के केस में पढ़े थे, लेकिन ये हम जेनेरिक पढ़ रहे हैं इसको, कि आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की सप्लाई डिले कर दें अप टिल द प्रोसेस के, जब तक अप टिल द टाइम जब कभी डिमांड क्लियर नहीं हो जाती कितनी प्रोडक्ट की डिमांड है। फिर शिफ्ट डिमांड टू अदर पीरियड्स फॉर बेटर सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल वो पूरा ही वो टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर क्वार्टरली सप्लाईज कर रहे हैं या क्वार्टरली बेस पर डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर ये डिसीजन ही आप पेंड कर दें अगले क्वार्टर के ऊपर, ताकि फिर सो दैट यू कैन प्रोवाइड अ बेटर सप्लाई रिस्पॉन्स, क्योंकि डिमांड आपको क्लियर हो जाएगी। देन देयर इज डेवलप क्विक रिस्पॉन्स एंड फ्लेक्सिबल सप्लाई सिस्टम, ये वो हम लोगों ने वी हैव स्टडीड दैट एस्पेक्ट के प्रोडक्ट को इतना पोस्टपोन करें, ये दिस वन इज एसोसिएटेड टू डिले सप्लाई रिस्पॉन्स अंटिल डिमांड बिकम्स क्लियर। लेकिन हम लोगों ने ऐसे मतलब केसेस पहले भी किसी लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, व्हेन वी सेड के फर्म्स का ऑर्डर पे डिपेंडेंट होती हैं, ऑर्डर बेस्ड सप्लाईज होती हैं। जब ऑर्डर बेस्ड सप्लाईज होती हैं उसमें सिनेरियो ये होता है कि फर्म का जो बहुत एफिशिएंट किस्म का, बहुत आप कह सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट होता है उसका सप्लाई चेन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि Amazon.com कैन नॉट इजीली प्रेडिक्ट कि इस सीज़न में उसको कितनी जो है वो आप कह सकते हैं कोई बच्चों को एक टॉय चाहिए होगा, कितना डिमांड किया जाएगा, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो अब उनके पास एक सोल्यूशन है, वो लंपी डिमांड में आ सकता है। सर्टन आइटम्स लाइक दैट कैन कम इनटू अ लंपी डिमांड केस, कि एक तो बहुत मास लेवल पे कुछ चीज़ें डिमांड, बुक्स फॉर एग्जांपल मास लेवल पे डिमांड की जाती है ओवरऑल अगर हम बुक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी एक बुक की टाइप की बात करते हैं तो मे बी इट माइट हैव अ लंपी डिमांड। तो अगर फॉर एग्जांपल Amazon.com एक टॉय इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी वेबसाइट के ऊपर,
इन दैट केस इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो उसकी डिलीवरी वो इतनी आसानी से आइडेंटिफाई ना कर सके पहले से कब करनी है. तो देन दैट केस इट्स सप्लाई चेन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव. एज सुन एज द प्रोडक्ट इज डिमांडेड वो सारा प्रोसेस हरकत में आ जाए, द प्रोडक्ट इज इमीडिएटली डिलीवर, एंड दैट इज व्हाट वी सी इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव. आपका डिलीवरी की सप्लाई की डेट्स हैं, अगर आप पाकिस्तान से ऑर्डर करते हैं वो आपको 15 डेज 20 डेज कहते हैं, फॉर 15 वर्किंग डेज 20 वर्किंग डेज में अर्जेंट डिलीवरी कर सकते हैं वो लोग आपको. दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन. इन जो ये अभी आइडेंटिफाई किए हैं, दीज वर आप कह सकते हैं जेनेरिक. जब भी आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्ट करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. इन दैट केस यू कैन यूज़ ये जो हमने डिस्कशन की, ये वो क्वालिटेटिव आप कह सकते हैं आइडियोलॉजीज़ हैं, ह्यूरिस्टिक्स हैं, ह्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ थंब है जो आप कंक्रीट तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, बट दे माइट बी. ये सारी चीज़ें इवन कि जब आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं, सम ऑफ देम माइट इवन देन बी यूटिलाइज्ड. जब आप फोरकास्ट करते हैं प्रोडक्ट को, इट इज़ आप ये एज्यूम करते हैं कि जी कस्टमर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. इसी तरह कोलैबोरेट विद अदर चैनल मेंबर्स, हमने ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर देखा है कि यू कैन कॉन्टैक्ट द इंजीनियर, यू कैन कॉन्टैक्ट ये सारे, फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट योर सप्लायर, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट योर कस्टमर. तो सप्लाई चेन वो सारे प्रोसेस में, एंड कस्टमर आप वो उस तरह सप्लायर, तो इस तरह वो सप्लाई चेन के प्रोसेस के अंदर आप इसको पूरे को चैनल मेंबर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मार्केटिंग टीम से, प्रोक्योरमेंट टीम से, अगेन इन लॉजिस्टिक्स के मैनेजर से फॉर एग्जांपल, या ट्रांसपोर्टेशन के हेड के साथ आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. मूविंग ऑन, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम लोग आई होप यू रिमेंबर जब हम लोग इसको डिस्कस करते थे, वी हैड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एज वेल एज. क्वालिटेटिव में तो वो जनरल मेथड्स थे, क्वांटिटेटिव के अंदर फॉर एग्जांपल हमने मूविंग एवरेज वगैरह कवर किए. जब आखिर में आते थे देयर वाज अ कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग. कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग इज बेसिकली व्हेन डिमांड इज लंपी और हाईली अनसर्टन. लंपी डिमांड का ग्राफ, आई होप यू रिमेंबर दैट. अगर आप लोग ये सारे लेक्चर इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू वुड हैव सीन दैट इन लाइक 1 hour ago or 2 hours ago, आई डोंट नो. तो लंपी डिमांड कैसी होती है कि आज फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं, कल 120 यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं, उससे अगले दिन फिर 5 यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं. तो दैट इज़ कि अचानक एक दिन 0 यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं, तो अचानक उसकी डिमांड किसी वक्त भी चेंज हो सकती है. दैट इज़ लंपी डिमांड. अक्सर प्रोडक्ट्स जो ऐसे फॉर एग्जांपल अपने लाइफ साइकिल के एंड पे भी आ जाती हैं या बहुत स्टार्ट पे होती हैं, तो इट माइट हैव अ लंपी डिमांड. जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएस जब नए इंट्रोड्यूस कराया गया, जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया था, नॉट एवरी वन वॉज फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट. जब तक लोगों ने यूज़ नहीं किया तो उसकी डिमांड आपके कांस्टेंट नहीं हुई. तो हाईली अननोन डिमांड एग्जिस्ट करती है उस टाइम पे. जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर भी पहुंचा, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर आके इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसके आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अभी वो मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हो रही है, तो लोग यूज़ करेंगे तो वो दूसरे लोगों को बताएंगे. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से एक नई इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट के ऊपर रिस्क ले लें, वरना बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं बैठ के कि कोई और यूज़ करेगा या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसकी वो स्प्रेड करता. तो एक प्रोडक्ट तो मासिवली एडवर्टाइज होगी, दैट इज़ टोटली समथिंग एल्स. लेकिन जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया था तो यूपीएस उस तरीके से एडवर्टाइज ऑब्वियसली नहीं होता था, लोगों ने खुद से यूज़ करने शुरू किए. जब लोगों ने यूपीएस यूज़ करने शुरू किए तो ऑब्वियसली अचानक जनाब ज़्यादा डिमांड आ रही है. एक टाइम पे लोगों ने 50 यूपीएस 50 लोगों ने मांग ली. फिर जनाब अगले कुछ महीने जो हैं वो शायद किसी ने ना मांगा हो. फिर जब उन्होंने यूज़ किया तो फिर लोगों ने औरों को बताया, तो फिर अचानक डिमांड बढ़ते बढ़ते फिर जब अपने ग्रोथ स्टेज पे ऊपर आती है तो बहुत स्पीड से. तो हमने ये डिस्कस किया था कि सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज़ और पूरा ये जो जब हम बात करते थे सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज़, आई मेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इन्वेंट्री डिसीजन, ट्रांसपोर्ट डिसीजंस, लोकेशन स्ट्रैटेजीज़ और ये फोरकास्टिंग एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री डिसीजंस. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त डिफरेंट फेजेस के ऊपर डिफरेंट होती हैं. अभी अगर आप लोग शॉप्स पे जाएँ तो हर शॉप पे ऑलमोस्ट यूपीएस पड़े हुए हैं और वो पैकेज के अंदर बड़े तरीके से पड़े होते हैं. एक ज़माने में आपको इस तरह प्रॉपर पैकेज यूपीएस भी नहीं मिलते थे, वारंटीज़ एंड गारंटीज़ एंड सर्विस स्टेशंस. तो दैट वुड मीन कि आपके ये जो है स्टार्ट में प्रोडक्ट की लंपी डिमांड, फिर एक प्रोडक्ट एंड ऑफ लाइफ साइकिल पहुंच जाती है तो उसकी डिमांड लंपी हो सकती है. फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट के पार्ट जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है उनकी डिमांड, सर्टन पार्ट्स की जो कभी कभी ख़राब होते हैं. गाड़ियों के कुछ पार्ट्स कभी कभी ख़राब होते हैं, आप जाके दुकान से पूछें तो उसके पास नहीं होता, वो कहता है जी सप्लाई आएगी तो मैं बता दूंगा आ जाएगी. तो इट इज़ हाईली पॉसिबल अनलेस कि आप उसके मेन सर्विस सेंटर के पास जाएँ, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो फॉर एग्जांपल लंपी डिमांड एग्जिस्ट कर सकती है मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट्स के लिए. तो उसके लिए फिर आप फोरकास्टिंग आप कैसे करेंगे, तो दैट इज़ कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग.
जो उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स ईच विद अ यूनिक पर्सपेक्टिव, टू हेड्स आर बेटर देन वन। अगेन क्योंकि आपके पास डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, इवन कि जब डाटा भी एग्जिस्ट करता है, आप लोगों को एक वो अभी मैंने इसी लेक्चर में आई गेस स्टार्ट में समराइज करवाया, इसी लेक्चर में समराइज करवाया कि आप वेटेड एवरेज के थ्रू फोरकास्ट अपने मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू निकाल रहे होते हैं। वो हम क्यों कर रहे होते हैं? हम एक्यूरेसी को करीब से करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी वॉन्ट टू रीच टू द पॉइंट जहाँ पे एरर मिनिमम हो। तो हम किसी एक को डिस्कार्ड भी नहीं कर देते और किसी एक को हम पूरे डिपेंडेंट भी नहीं हो जाते। हम मल्टीपल मेथड यूज़ करते हैं, उनकी वेटेड एवरेज लेके हम लोग फोरकास्ट करते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल जब आपके पास उस तरह का डाटा बेस्ड आप फोरकास्ट नहीं कर रहे, जब डेल्फी मेथड हम लोग बात करते हैं, तो डेल्फी मेथड ने मैंने आप लोगों को बताया था कि इन केस ऑफ डेल्फी मेथड यू यूज़ मल्टीपल एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लेके आते हैं आप, चाहे वो आउटसाइड एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो इनसाइड एक्सपर्ट्स हैं। आप सारा इन्फॉर्मेशन सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर देते, आप और भी एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं और उनसे फिर आप फोरकास्ट लेते हैं और फिर उस फोरकास्ट को आप सबको बता के फिर उसको करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा वो रिवाइज करें अपने रिजल्ट्स को। वो खैर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो इसका मतलब है कि हम एयर फोरकास्ट मेथड के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते। क्यों? बिकॉज टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो ये आइडियोलॉजी इस कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग के अंदर लिखी हुई है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स ईच विद अ यूनिक पर्सपेक्टिव। अगर जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल का जिसका सबसे ज़्यादा मैनेजरियल जजमेंट का सबसे ज़्यादा एरर था। मैनेजरियल जजमेंट का एरर वाज अराउंड 9%, 9 या दैट एरर वाज 9। और दूसरा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का 8 पॉइंट समथिंग था। अब अगर डोंट यू थिंक एरर इतना ज़्यादा था हम उसको निकाल के बाहर फेंक दे? नहीं, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ इट्स यूनिक परस्पेक्टिव। तो उस मॉडल का भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो उसने कैप्चर की हैं, वो लाजमी नहीं दूसरे मॉडल ने कैप्चर की हुई हैं, फिर उसको भी पार्ट होना उसका लाजमी है। तो इसी वजह से इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टिसिपेंट, जिस तरह हम उसमें मॉडल्स यूज़ कर रहे थे मल्टीपल, इसी तरह आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट यूज़ करते हैं तो आप एक यूनिक परस्पेक्टिव सबका यूज़ करते हुए आप फोरकास्ट निकाल लेते हैं। एंड द एम इज सेम। जो इसका एम है वो क्या है? फोरकास्ट एरर को रिड्यूस करना। और इस केस में भी गोल इज टू रिड्यूस द फोरकास्ट एरर, कि आपके एरर के अंदर जो डेविएशन आनी है उसको आप मिनिमाइज कर लें। द फोरकास्टिंग प्रोसेस इज इनहेरेंटली अनस्टेबल, क्योंकि ऑब्वियसली द डिमांड इज अनस्टेबल। तो इसका मतलब है फोरकास्टिंग प्रोसेस भी जो है वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है। आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरह आप उन पर डिपेंड करते हैं मॉडल्स पे। अब ये उसकी की स्टेप्स हैं, राइट? लाजमी नहीं दैट दीज स्टेप्स आर लाइक ये बाय द बुक कोई वो उस तरह की चीज़ है दैट यू हैव टू फॉलो इट, ऑब्वियसली, बिकॉज अब वो आपका वो जो डिमांड के पर्सपेक्टिव्स हैं वही चेंज हो गया। उसमें तो मेथोडोलॉजीज में तो एग्जिस्ट करती है ना कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बड़े क्लियर स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए एक एक एग्जाम्पल के अंदर। क्या फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करनी तो वेट रखना है, वेट डिफाइन करना है। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल फोरकास्ट और एरर को, ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है वो बड़े कंक्रीट स्टेप्स हैं उसके अंदर, लेकिन इसमें ऑब्वियसली उस तरीके से कंक्रीट स्टेप्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे, क्योंकि आप इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं डेफिनेटली। जो जेनेरिक इसके की स्टेप्स हैं कुछ तो ऑब्वियसली इसमें इंपॉर्टेंट हैं, 100% इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू डू देम, लेकिन बट देन अदर्स कैन बी customized. The right word would be customized to your own needs. Establish a process champion. सबसे पहले आपने उस पूरे उस सेटअप का, आप कह लें कि लीडर आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो ऐसा इंडिविजुअल जो आप सॉर्ट ऑफ हेड कर सकते हैं उस टीम को जिसने फोरकास्ट करना है, एक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देन आइडेंटिफाई द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन प्रोसेस, कि एक उस बंदे ने जिसने पूरा प्रोसेस रन करना है। फिर उसके बाद आपने वो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है जो रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। ऑब्वियसली बेसलेस चीज़ों के ऊपर तो वो नहीं दे वुड प्लेस। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो हमने जिस तरह लास्ट केस में कहा था कि हम लोग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो फोरकास्ट करेंगे, एंड फिर जब वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपने फिर उसका कलेक्शन प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। देन एस्टैब्लिश मेथड्स फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड द वेट्स असाइन टू मल्टीपल फोरकास्ट। कि अब जब आप मल्टीपल फोरकास्ट कर रहे हैं, चाहे आप वो अगेन यू कैन टर्न टू क्वांटिटेटिव। हमने क्वांटिटेटिव के केस में वो डिस्कस किया था कि इट माइट बी अ क्वांटिटेटिव फोरकास्ट, लेकिन फिर हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि फिर एरर के केस में जो है वो ज़्यादा इशू नहीं रेज होता। ऑब्वियसली अब जब लंपी डिमांड आप फेस कर रहे हैं दैट वुड मीन कि अगर आपकी प्रोसेस के अंदर एरर है, नंबर 1
इट कैन नॉट बी कि आप पहले से प्रोड्यूस करके रख लें, जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के हम लोग इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस करके रख लेते हैं। नंबर 2, अगर एरर आता भी है तो उस एरर का इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, most probably. That is why that error is acceptable. Otherwise it would be very expensive to produce that product. तो फिर establish methods of processing information from multiple sources. एक तो different sources से information आ रही है आपके पास, उसको process कैसे करना है। फिर जो उसके अंदर for example उस जो आपके multiple forecast आप कर रहे हैं उसको weight कितना assign करना है और कैसे assign करना है। Create methods for translating forecast into form needed by the each party. कि आपने फोरकास्ट ले ली, फिर आपने हर पार्टी को जिस तरीके से प्रेजेंट करना है ईच पार्टी को, उसको आप प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से। अब आप उन लोगों से अगेन वो जो मल्टीपल हेड्स हैं उनकी बात हो रही है, अब ये 2 हेड्स आर बेटर देन 1, तो उनको आप किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके देंगे। एस्टैब्लिश प्रोसेस फॉर रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग फोरकास्ट इन रियल टाइम, क्या आप फोरकास्ट फिर रिवाइज कैसे करेंगे, उसके बाद उसके लिए प्रोसेस आइडेंटिफाई करना। क्रिएट मेथड्स फॉर अप्रेजिंग द फोरकास्ट, कि आप उसको चेक कैसे करेंगे। Then show that the benefits of collaborating forecast are obvious and real. Obviously, when having something is better than nothing. तो अगर आपके पास forecast, for example, सिरे से exist नहीं करती, against that आपके पास certain level of forecast exist करती है, कुछ ना कुछ आप extract कर लेते हैं information, तो that information is much better than having nothing. Then how to manage highly uncertain demand. ये उसी से सिमिलर किस्म की आप कह सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि व्हाट इफ फोरकास्ट, व्हाट टू डू व्हेन वी कैन नॉट फोरकास्ट, व्हाट टू डू व्हेन फोरकास्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब वो उस केसेस में अब जब किसी प्रोडक्ट की हाईली अनसर्टेन डिमांड होती है, ये भी उसी से सिमिलर पॉइंट्स हैं, लेकिन अब ये एक्शन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आ जाता है डिलेइंग द फोरकास्ट। जितना आप डिले कर सकते हैं फोरकास्ट को उतना डिले कर लें, ताकि जब आपके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और डाटा आ जाए, ओनली देन यू हैव टू फोरकास्ट, यू कैन फोरकास्ट। तो आप उसको जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले कर लें। प्रायोरिटाइज सप्लाई बाय प्रोडक्ट्स डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, कुछ तो उसमें से ऑब्वियसली ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेगुलर डिमांड एग्जिस्ट करती है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अनरेगुलर डिमांड एग्जिस्ट करती है, जिनकी अनरेगुलर डिमांड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिसमें लंपी डिमांड फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करती है। कुछ प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी प्रोडक्ट से ज़्यादा लंपी हो सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। तो आप फिर उसके हिसाब से सप्लाई अपनी प्रायोरिटाइज करें, उस हिसाब से कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांडेड है उसको उसके हिसाब से आप चलें। जो मोस्ट अनसर्टन डिमांड है उसको सबसे एंड के ऊपर रखें, जितना आप डिले कर सकते हैं उसको। बेसिकली द एम इज़ टू डिले। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट टू द मोस्ट अनसर्टन प्रोडक्ट, एग्जैक्टली द सिमिलर स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों को दे रहा था। Delay committing to a final product from until an order is received. फाइनल प्रोडक्ट से आप कमिट करने से डिले करेंगे until आपके पास ऑर्डर रिसीव। कभी आप लोगों ने नोट किया कि आप किसी शॉप पे जब ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो अक्सर वो आप लोगों से कोई सम सिक्योरिटी मनी अपने पास रखते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करें तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपके पास अपने पास रखेंगे। इन सर्टन केसेस जैसे आप तस्वीर फ्रेम कराने जाते हैं तो यू कैन हैंड ओवर दैट पिक्चर टू देम, दैट इज अ सिक्योरिटी इटसेल्फ, ये तो वापस लेने आएगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट सिरे से उसको मैन्युफैक्चर करने को कहते हैं, जीरो से बनाने कहते हैं, तो वो आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। द एम इज एग्जैक्टली दिस वन। अप्लाई द ये डिले कमिटिंग टू अ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम अंटिल एन ऑर्डर इज रिसीव्ड, ये अब ठीक है, उससे एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट है कि फाइनल ऑर्डर रिसीव। मैं फाइनल ऑर्डर से मेरे जहन में आया था अंटिल फाइनल ऑर्डर इज रिसीव्ड। द पॉइंट इज कि अभी भी फिर वो डिलेइंग, जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले आप फोरकास्ट को डिले कर रहे हैं, फिर आप प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज ऐसे करें जिसकी मोस्ट अनसर्टन डिमांड है, उसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा डिले कर रहे हैं। फिर आप ये कर रहे हैं कि उसकी फाइनल प्रोडक्ट तब तक नहीं मतलब बनाते रादर जब तक आपके पास ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमाइज्ड होती हैं, तो वो इन दोज केसेस आप पहले से बना के नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के कार्ड हैं, आप जब शादी के कार्ड बनवाने जाते हैं, दोज इन्विटेशन दैट आर यू आर गोइंग टू सेंड टू द गेस्ट, इन दैट केस वो आपसे बाय द वे सिक्योरिटी मनी भी रखेगा, वो मेरी दूसरी एग्जांपल भी में फिट आ जाएगी। बट दे वुड नेवर प्रोड्यूस अंटिल द फाइनल ऑर्डर इज रिसीव्ड। पहले से शादी के कार्ड बना के नहीं रखेंगे, वो पहले से सिर्फ सैंपल होते हैं उनके पास। They would never print those invitations unless they have complete information, right? फिर create flexible supply to changing demand, यानी कि आपका जो supply mechanism है that should be flexible. अगर demand fluctuate करती है, change करती है, in that case your supply mechanism might be very flexible.
यानी कि अगर जिस हमने वो डिस्कस किया था फ्रॉम ट्रांसपोर्ट पर्सपेक्टिव आई गेस, कि जब प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल डिलीवर की जाती हैं तो हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया था ABC 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से, कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 20% प्रोडक्ट्स जो हैं वो 80% टोटल सेल्स का पार्ट बन जाती हैं, तो प्रायोरिटाइज की हुई होती है ना सप्लाई के हिसाब से ऑब्वियसली। तो वो जब वो 80-20 जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेस पे 80-20 कर्व बनता है, दैट इज अगेन एसोसिएटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। देखेंगे चीज़ें लिंक होती जा रही हैं आपस में, आहिस्ता आहिस्ता लिंक होती हैं, इनफैक्ट मेथोडोलॉजीज भी ओवरलैप कर जाती हैं, यूटिलाइज की जा सकती है। उस वक्त हमें 80-20 का प्रिंसिपल थोड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन अब समझ आती है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो अपने मैं लाइफ साइकिल की बात कर रहा था, ऐसी प्रोडक्ट्स विच कम टू द एट द बॉटम ऑफ देयर एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, तो उनकी डिमांड भी फिर वो एक तो इतनी ज़्यादा सेल्स भी नहीं कि वो रेवेन्यू जनरेट करें। फिर जब सप्लाई का पर्सपेक्टिव है, जब आप दोनों को एक खाते में नहीं मैनेज कर सकते, एक प्रोडक्ट रेगुलर डिमांड की जा रही है, उसका सप्लाई चेन का प्रोसेस डिफरेंट होगा, एक प्रोडक्ट कभी कभी डिमांड की जा रही है, उसका डिफरेंट होगा। आप इसको उसके साथ उस तरीके से वो सेम मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज नॉट इन रेगुलर डिमांड। आप उसको उस तरीके से सप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर आपका सप्लाई का प्रोसेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब मांगी जाए तो प्रोवाइड कर दी जाए, अदरवाइज नहीं। जब मांगी जाए तो मैन्युफैक्चर कर दी जाए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसके आप लार्ज इन्वेंट्रीज मेंटेन नहीं कर सकते। ऑल्टर कैपेसिटी एंड आउटपुट रेट्स थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मल्टीपर्पज प्रोसेसेस एक्सेट्रा। कि आप ऐसी प्रोडक्ट की कुछ मतलब फॉर एग्जांपल आप उसकी चाहे सप्लाई है, अगर हम उसकी पूरी सप्लाई चेन का ओवरऑल बात करते हैं, या उसकी प्रोडक्शन या उसकी रॉ मटेरियल, आप बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी और को देते हैं, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं आप। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कि आप वो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्या तब तक डिले करेंगे इसको जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाएगा, आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। देन मल्टी पर्पज़ प्रोसेसेस, कि आपका एक फॉर एग्जांपल जनरल प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी का प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस। अगर एक हम खास टाइप की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो उसके अंदर भी फिट हो सकती है आपकी वो प्रोडक्ट। जब डिमांड की जाएगी तो उसके अंदर डाल दी जाएगी, जब नहीं डिमांड की जाएगी तो वैसे के वैसा पूरा ट्रक चला जाएगा। डू यू सी? अगर फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम फॉर नाउ फॉर जस्ट फ्यू सेकंड्स के टूथब्रश जो हैं दोज आर इन लंपी डिमांड, हालांकि है नहीं, लेकिन वी आर एज्यूमिंग दैट दे आर इन लंपी डिमांड फॉर जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो अब अगर टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी शिप करती है और वही टूथब्रश भी बनाती है, चले हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं, एक और बहुत बड़ी एजम्पशन, वैसे कोलगेट वाले बनाते हैं, हंसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोलगेट वाले टूथपेस्ट भी बनाते हैं, टूथब्रश भी बनाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की डिमांड जो है कोलगेट की वो रेगुलर डिमांड है, वो मांगते हैं और वो डिलीवर होती है, स्टॉक्स में जा रही है। तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोसेस की बात है, इसमें सिमिलर नॉट प्रोडक्शन प्रोसेस बट डिलीवरी प्रोसेस की, उन्हीं ट्रक्स में टूथब्रश भी लोड करके भेजे जा सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। नाउ इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोसेस कि वो उसकी भी डिलीवरी कर रहा है, उसकी भी डिलीवरी कर रहा है। तो दैट इज़ आप अपने सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं उस एक खास मतलब सप्लाई चेन माइट बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप वो चंद प्रोडक्ट्स बीच में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, जिनकी लंपी डिमांड होती है, जब ज़रूरत पड़ेगी डिलीवर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं भिजवाएंगे उसको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Be able to respond quickly to uncertain demand levels, कि एक आप जो हाई डिमांड हाई प्रोडक्ट्स विद हाईली अनसर्टेन डिमांड को मैनेज करने का वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज, द ओनली सोल्यूशन। एक्चुअली ये वो चीज़ें हैं जो रादर आई वुड से सोल्यूशंस नहीं है, जो मजबूरी हैं, बिकॉज इन दिस केसेस दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट। या तो बिजनेस छोड़ दें, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक प्रोडक्ट का एक उससे रेवेन्यू आता है, तो वाई शुड यू लीव दैट? तो इसका मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट को आप ऑल टुगेदर डिस्कार्ड करने से बेहतर है कि आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। यही इम्प्रूव्ड सिस्टम आपको अपनी रेगुलर सप्लाई चेन की इम्प्रूवमेंट की तरफ भी लेके जाएगा। तो व्हेन देयर इज अ हाईली अनसर्टेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, इन दैट केस बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अनसर्टेन डिमांड लेवल। अचानक उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड। वो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो डिलेड ऑर्डर, जब डिले ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें, वो भी हम तभी एज्यूम करें दैट वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली। हम तभी ऑर्डर प्रोसेसिंग डिले कर रहे हैं, या प्रोडक्ट में पोस्टपोनमेंट लेके आ रहे हैं, या फोरकास्टिंग डिले कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज, जो सबसे पहले बेसिकली जब आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे अपनी सप्लाईज को, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। पोस्टपोनमेंट आप इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, आप डिलेड फोरकास्टिंग इसीलिए कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन को रख ही इसलिए रहे हैं। बेसिकली आपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर लिया, अपनी प्रायोरिटाइज कर दिया, और जो उसमें लंपी डिमांड या अनसर्टन डिमांड वाली प्रोडक्ट्स हैं वो साइड पे हैं।
वो यूज़ इसी सिस्टम को करती हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर वगैरह वो सब कुछ तब किया जाएगा जब उनके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, और जब ऑर्डर प्लेस होंगे तो ऑर्डर तभी उसको आप क्विक टाइम सप्लाई कर सकते हैं जब आप आईटी टेक्नोलॉजी या फॉर एग्जांपल वो जो लिखा हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टिंग आईटी और मल्टीपर्पज़ प्रोसेसेस को आप जब यूज़ करेंगे। अदरवाइज क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी भी अंदर आपके एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मतलब ये सारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं बोलता काफ़ी हूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ के रिपीट भी करता हूँ चीज़ें, थोड़ा तेज़ बोलता हूँ और रिपीट भी। मुझे क्लास में भी अक्सर ना बच्चे, मैंने अपनी क्लास में अनाउंसमेंट की हुई होती है कि जब मैं तेज़ बोलना शुरू हो जाऊँ तो रेज योर हैंड्स, और उसमें एक बच्ची ने मुझे काफ़ी तंग किया था क्लास में, हर थोड़ी देर से आता उसको शायद वो क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। कई बच्चे तो किधर कहते हैं चलो यार जाके पढ़ लेंगे किताब से, ऐसे भी होता है। जैसे आप लोग भी कभी लेक्चर में सो जाते होंगे, आप बंद करते हैं और कहते होंगे चलो हम बुक से पढ़ लेंगे, बाय द वे गलत करते हैं। ये बाद में एग्जाम के टाइम भी पता चलता है हम लोगों को, बिकॉज वी कैन गेट बेटर मार्क्स इफ़ वी वर्क अ लिटिल हार्डर। अपने आप को वो आखिरी लिमिट से ही आगे पुश करना होता है। आप कुछ अर्से अपने आप को उस लास्ट लिमिट से आगे पुश करेंगे तो यू वुड बी एबल टू रीड द बुक एज वेल एज यू वुड बी एबल टू लिसन टू द लेक्चर्स। बंदा एडजस्ट हो जाता है। हम सिर्फ अपने आप को वो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है पाकिस्तानी, उस लास्ट लिमिट से आगे हम जाने की कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं बस यार हो गया, बस अब मेरी बस होगी। दैट मेरी बस इज़ टोटली इंट्रेंसिक, वो सब्जेक्टिव है, वो इंडिविजुअल की अपनी बस होती है और उसके कंट्रोल में होती है। उससे एक स्टेप आगे जाना, वो कहते हैं ना साउंड बैरियर जैसे टूटता है, एक लिमिट एक स्पीड है, उसके बाद साउंड बैरियर टूट जाता है। तो वो बेसिकली तोड़ने की ज़रूरत होती है हर लाइफ के हर, जब भी आप एफर्ट कर रहे होते हैं किसी, चाहे वो डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप वो नंबर ऑफ आवर्स अपने एक्सटेंड करने की कोशिश करें स्टडी है, चाहे आप अपनी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, सुबह उठना चाह रहे हैं, एनीथिंग। खैर ये इस तरह के वास्त मैं बीच बीच में करता ही रहता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं असर भी कितना होता है इनका। तो अभी तक वी वर डिस्कसिंग बेसिकली फोरकास्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। और आज जो हमने जिसके ऊपर फोकस किया वो हमने अनसर्टन या लंपी डिमांड वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया। मूविंग ऑन वी एंटर इन्वेंट्री पॉलिसी डिसीजंस। एक इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है एक रेवलॉन के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव का, दैट एवरी मैनेजमेंट मिस्टेक एंड्स अप इन इन्वेंट्री। कि मैनेजमेंट जहाँ पे भी गलती करती है, एवरी मैनेजमेंट मिस्टेक रिजल्ट्स अप इन इन्वेंट्री, आखिर में इन्वेंट्री में चीज़ें पड़ी होती हैं। हमें अभी तक फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे थे, अब इन्वेंट्री को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि चीज़ें लिंक होती जा रही हैं खुद ही। सप्लाई चेन का जब सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट। हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीज़ को अलग अलग करके पढ़ाएं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कोर्स के एंड की तरफ आते हैं हम देखते हैं सारी चीज़ें आपस में एक जगह पे यूँ एडजस्ट होती जा रही हैं। लोकेशन, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे कस्टमर सर्विस है, चाहे ये है, वो सारी बातें, वो सारी कस्टमर सर्विसेज वाली बातें भी आपको रिपीट होती हुई नजर आएंगी इसमें। आपको जब कस्टमर सर्विसेज पढ़ाता तो इन्वेंट्री हम क्यों रखते हैं वो भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होता है। अब उन सारों को लिंक करके आप देखें फोरकास्टिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो सबका मकसद वही है। द एम इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर बेसिकली, इन शॉर्ट। उसके लिए पूरा सप्लाई चेन की ये दौड़ है, ये डिस्कशन है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की। अब आ जाता है इन्वेंट्री पॉलिसी डिसीजंस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिस्टेक एंड्स अप इन इन्वेंट्री, एवरी मैनेजमेंट मिस्टेक एंड्स अप इन इन्वेंट्री। जब भी मैनेजमेंट को काम गलत करती है तो वो इन्वेंट्री में जाके लैंड हो जाता है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो हम लोग इन्वेंट्री डिसीजंस के ऊपर आ चुके हैं। इन्वेंट्री स्ट्रेटजी में हम लोगों ने फोरकास्ट को डिस्कस कर लिया, अब हम आगे फोरकास्टिंग को डिस्कस किया, अब हम आगे इन्वेंट्री डिसीजंस में। नॉर्मली हम लोग हर एक के हमने एक एक दो चीज़ें डिस्कस की हैं बिकॉज वी आर वेरी लिमिटेड इन टाइम। क्लासेस में एक्चुअली क्या होता है, व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग अगर 3-4 चीज़ें पढ़ा देते हैं तो अगली 3-4 चीज़ें बच्चे को पढ़ने को दे देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बड़ी स्पीड से हम लोग रन कर जाते हैं। कई दफ़ा हम ये भी करते हैं कि वो चीज़ें छोड़ के बच्चों को कहते हैं ये पढ़ लें, इसको हम लोग विल डिस्कस दैट व्हेन एवर यू हैव टाइम। इधर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास लेके आ जाना, अगर बच्चे पढ़ने वाले लगे आपको तो। आप ये कहते हैं 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए, चौथा टॉपिक उसको पढ़ने को दे दिया कि यू कैन आस्क मी टुमारो। तो ये रीड होम असाइनमेंट्स होते हैं, दीज ऑल्सो हम वो कोशिश करते हैं ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। लेकिन जब रिकॉर्डिंग की तरफ आते हैं तो स्पेसिफिकली वी आर मोर फोकस्ड ऑन कि जो हमने पढ़ा दिया एटलीस्ट वो ऐसा पढ़ा दें कि उसको भूले ना, चाहे वो हमें 8 दफ़ा रिपीट ही क्यों ना करना पड़े। स्टिल द थिंग इज़ कि हम लोग इन्वेंट्री डिसीजंस अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री स्ट्रेटजी के अंडर हम लोगों ने ट्रायंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एंड में मैं कोशिश करूंगा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरे वो उसको सप्लाई चेन को, उसका रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कैसे है, और नॉर्मली हायरकीज़ कैसे बनती हैं, ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में थोड़े जनरल टॉपिक्स हैं। पहला क्वेश्चन कि इन्वेंट्रीज है क्या, हम इन्वेंट्रीज किसको कहते हैं। अब आप लोग स्लाइड इतनी देर में पढ़ भी चुके होंगे जब मैं क्लास में ये पूछता हूँ तो नॉर्मली मैंने स्लाइड हटाई हुई होती है, और अब मैं कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि बच्चे स्लाइड की तरफ देखना शुरू ले, उनकी आंखों की तरफ देख रहा होता हूँ जो स्लाइड को देखते हैं।
फिनिश प्रोडक्ट्स हेल्ड फॉर सेल, आपने प्रोड्यूस कर दी, आपने रखी हुई है, आपने उसको सेल करना है, दैट इज इन्वेंट्री. गुड्स इन वेयर हाउसेस, राइट, कोई चीज़ आपने वेयर हाउस में स्टोर की हुई है, दैट इज एन इन्वेंट्री. वर्क इन प्रोसेस, जब चीज़ें वो प्रोड्यूस की जा रही हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, अब इमेजिन करें प्रोडक्शन प्रोसेस की जब भी जेन में चीज़ आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, वी ऑलवेज थिंक ऑफ, एटलीस्ट आई ऑलवेज थिंक ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग और उसके ऊपर बनी हुई है, जिस तरह हम टीवी वगैरह में देखते हैं बॉटल्स फिल हो रही हैं और वो सारा, तो वो जो वर्क इन प्रोसेस है वो भी इन्वेंट्री में ट्रीट होते हैं. गुड्स इन ट्रांजिट, इंटरेस्टिंगली आपने वेयर हाउस से निकाल दिया, आपने कस्टमर को डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. इंटरेस्टिंगली स्टाफ हायर्ड टू मीट सर्विस नीड्स, ये आप सोचेंगे कैसे, इसके लिए हम अगला पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं. एनी ओन्ड और फाइनेंशियली कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पार्ट हो गया, राइट. चाहे आप ओन्ड के आपके पास पड़ा हुआ है, फाइनेंशियली कंट्रोल के आपने पेमेंट की हुई लेकिन आपके पास नहीं पड़ा हुआ, दैट इज रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोसेस में बता चुका हूं ऊपर, रॉ मटेरियल एंड और फिनिश गुड, और फिनिश गुड जो रखी हुई है हमने बता दिया फिनिश गुड है, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. और सर्विस हेल्ड इन एंटीसिपेशन ऑफ सेल, इसकी वजह से जो सर्विस हेल्ड वाला बात आ गया, स्टाफ हायर्ड टू मीट सर्विस नीड्स, क्या वैसे सर्विस पर्सनल जब रख लेते हैं कि जब रिक्वायर्ड होगा हम सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, बेसिक चीज इन एंटीसिपेशन ऑफ सेल आ जाता है इसके अंदर, एंटीसिपेशन ऑफ सेल बट नॉट येट सोल्ड, क्योंकि जब सेल हो गई तो वो गई, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं, उससे पहले पहले सारा कुछ इन्वेंट्री में पार्ट है. दोबारा लिस्ट देखें एक दफा. फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल, बेचनी है आपने, नहीं बिकी. गुड्स इन वेयर हाउसेस, जो पड़ी हुई हैं अभी तक नहीं बिकी. वर्क इन प्रोसेस, बन रही है अभी, बिकी नहीं है. गुड्स इन ट्रांजिट, रस्ते में है लेकिन बिकी नहीं है अभी, चाहे वो प्रोड्यूसर से वेयर हाउस जा रहे हैं, चाहे वेयर हाउस से आपके कस्टमर तक जा रहे हैं, इन्वेंट्रीज हैं, जब तक सोल्ड नहीं हो जाती, जब तक उसकी आप कह सकते हैं कि ये निकल गई, ये कस्टमर के पास है. अब जो आपकी गुड्स इन ट्रांजिट आती हैं वेयर हाउस से, जो आप प्रोडक्शन फैसिलिटी से वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, या जो भी डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउस हैं जिनको हम आगे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले वेयर हाउस होते हैं, आपके ब्रेक वो जो वेट वाला कॉन्सेप्ट है अलग अलग करने, वो सी वेयर हाउसेज बनाते हैं लोग अक्सर, वो हम क्यों बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, कॉस्ट कम पड़ती है उनको. गुड्स इन ट्रांजिट भी उसमें आ गई. एनीथिंग ओन्ड और फाइनेंशियली कंट्रोल्ड, एनी ओन्ड और फाइनेंशियली कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल उसका पार्ट बन गया, बाकी सारे ऊपर मेंशन है. स्टाफ हायर्ड टू मीट सर्विस नीड, लेकिन अभी तक उन्होंने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, सर्विस उनकी सेल नहीं हुई. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर उस क्या नाम है उस फोटो स्टेट मशीन कंपनी का, बहुत मशहूर एक सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है कैनन की मशीन्स का, मुझे उसका नाम भूल गया, शायद शिराजी ट्रेडिंग और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद सर्विस पर्सनल काफ़ी सारे होते हैं जो मशीनें सेल आउट कर देते हैं, देन आप उनको कॉल करते हैं, वो आके फिक्स कर जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं आपकी मशीन्स. सो बेसिकली दे आर, आप कह सकते हैं वो सर्विस पर्सनल उन्होंने रखे हुए हैं जब तक उनकी सर्विसेज सेल नहीं होनी, राइट. अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के तौर पे हायर किया हुआ उनको, तो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्रीज हैं कहाँ कहाँ, जब हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो ये पूरे आपके जो इस वक्त लेआउट है आपके सामने, आई होप कि आपको बड़े क्लियरली नज़र आ रहा है. इस लेआउट के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट्री में है. ये सारी इन्वेंट्री लोकेशंस है बेसिकली, आपकी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ, जहाँ पे आपका रेड टिक मार्क का एरो लगा हुआ है वो सारी की सारी आपकी इन्वेंट्रीज में ट्रीट हो रही है. ये डायग्राम के अंदर यूं सेल्स बने हुए हैं. सबसे पहला सेल है मटेरियल सोर्सेज का, दूसरा सेल है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन का. अब वो टिक नीचे ट्रेन के साथ लगा हुआ है तो ट्रक में ऊपर नहीं लगा हुआ है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन. उसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ें ट्रक से जाती हैं वो इन्वेंट्री में नहीं ट्रीट होती हैं और जो ट्रेन के अंदर जाती हैं वो इन्वेंट्री में है. ये पूरे वो सेल के अंदर टिक लगा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा, टिक मार्क है. सो बेसिकली मटेरियल सोर्सेज सारी की सारी आपकी इन्वेंट्री के अंदर आ गई. जब मटेरियल वहाँ से आपका वो लिखा होता है ना ओन्ड और फाइनेंशियली कंट्रोल्ड, इसके अंदर सबसे ऊपर देखें आपकी जो रॉ मटेरियल आपका सप्लायर है शिपमेंट में है, चाहे थ्रू सी शिपमेंट्स आ रहा है, चाहे जो है वो जनरल मटेरियल सोर्स है आपका वो हो गया. इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन जो रास्ते में है वो आ गई. फिर आपके आगे प्रोडक्शन है जहाँ पे आपके मैन्युफैक्चर करें, आपकी अपनी इंडस्ट्री जिस जगह पे लगी हुई है उसके अंदर जो आपकी मैंने बताया था ना आपकी वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स इन प्रोसेस हैं जो भी बननी है, फिनिश गुड्स भी हैं, वो सारी की सारी इन्वेंट्रीज में ट्रीट होती हैं. इसके अंदर प्रोडक्शन मटेरियल्स भी शामिल है, रिसीविंग एंड पे आप उसके बाद देखें प्रोडक्शन मटेरियल शामिल है, इन्वेंट्रीज एंड प्रोसेस शामिल है जो गुड्स बन रही हैं और जब बन चुकती हैं वो भी शामिल है. ऑल दीज आर इन्वेंट्रीज. फिर वहाँ से निकली, इससे पीछे भी गुड्स एंड ट्रांजिट थी,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से पीछे, प्रोडक्शन के बाद भी गुड्स एंड ट्रांजिट आ गई दोबारा. These are outbound transportation. Then there are finished goods warehousing, multiple types की warehousing होती है. फॉर एग्जांपल वो हम आगे वेयर हाउसिंग की टाइप्स डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे आप वो फॉर एग्जांपल वेयर हाउस टू कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, आप वेयर हाउस टू डिफरेंट लोकेशंस में, वो डिफरेंट रीजन्स हैं, वो डिस्कस कर लेंगे, उनके पूल सॉर्ट ऑफ थिंग. और फिनिश गुड्स वेयर हाउसिंग वो आ जाती हैं. कस्टमर्स को अगर आप देख लें तो जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसमें तो नीचे वाले वेयर हाउस से जब वो गुड उस रिटेलर के पास जाती है, अंटिल दैट पॉइंट जब तक कस्टमर उसकी पेमेंट नहीं करके गुड एक्वायर नहीं कर लेता, दोज आर इन्वेंट्रीज. आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब बेसिकली ये दैट इन्वेंट्रीज आर हेल्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, राइट. यानी कि आपके मटेरियल सोर्सेज से आता है, वहाँ पे आप उसके बाद आगे इन्वेंट्रीज लग सकते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्शन के पास इन्वेंट्रीज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट चीज़ें इसमें इन्वेंट्री में शामिल होती हैं, फिर आउटबाउंड ट्रांसलेट में चीज़ें हो तो वैसी आपकी इन्वेंट्रीज हैं, फिर वेयर हाउसेज ऑफ लोकेशन. तो इन्वेंट्री का जो कैरिंग है, हम बात करते थे ना, आई होप यू रिमेंबर इन्वेंट्री जब हम कॉस्ट परस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की हम लोगों ने बात की थी. तो ये वो सारी ये कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कि आप एक इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हैं, आप उसको कैरी कर रहे हैं, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं कंटिन्यूसली. तो एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें आप सप्लायर से चीज़ें मंगा रहे हैं. जो यू जस्ट इवन आप पाक स्टील की बात कर लें, किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं, नेस्ले की बात करें, तो यू जस्ट कैन यू इमेजिन कि कितना ह्यूज सेटअप इस वक्त रन हो रहा है. कंटिन्यूस प्रोडक्शन की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाईज हैं, आगे डिलीवरीज हैं, इतना, और हर लेवल पे इन्वेंट्रीज मैनेज की जा रही हैं, रॉ मटेरियल की भी, फिनिश गुड्स की भी, सेमी फिनिश गुड्स की भी, वो सारा एक पूरा प्रोसेस है. तो इस पूरे प्रोसेस में मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इन्वेंट्रीज रखी जा रही हैं. तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट वी नीडेड टू हाईलाइट इन. अगर आप ये जितना मतलब ये तो बहुत स्मॉल प्रोसेस बना हुआ है फॉर अ लार्ज बिजनेस, जो मल्टीपल जाइंट्स इस दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन, यू जस्ट कैंट इवन इमेजिन. आप उसको एक एक इस तरह के लेआउट में लेके भी नहीं आ सकते, इतने उनके मल्टीपल नोड्स बनते हैं, इतने कनेक्शंस बनते हैं उनके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्वेंट्रीज. अगेन अब देखें, मैं आप लोगों को आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर कि हम वही चीज़ें घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से दोबारा डिस्कस कर रहे होते हैं, जो इधर आप लोगों के कस्टमर सर्विस से लिंक्ड होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड होती हैं, जो आपकी लोकेशन से लिंक्ड होती हैं. अगर आप उनको देखें तो वो सारी समराइज होकर अगले केस में चली जाती हैं. जब हम कस्टमर्स की बात करते थे, हम इन्वेंट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन और लोकेशन की बात करते थे. व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन, वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर सर्विसेज. इसी तरह हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो वी नीड टू टॉक अबाउट कस्टमर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकेशन. दे आर सो, आप कह सकते हैं, linked with each other that it becomes difficult. और अब साथ हम एडिशनली एक बार चीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज डिमांड, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सारी कहानी डिमांड से ओरिजिनेट होती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. एज सुन एज द प्रोडक्ट इज डिमांडेड, इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी. इम्प्रूव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड्स इमीडिएसी इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, जो पूरे सप्लाई चेन प्रोसेस का कोर है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था. टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट व्हेन द कस्टमर नीड्स इट एंड वेयर द कस्टमर्स नीड्स इट. यानी कि whenever the customer needs a product, the product should be over there. Whenever they go to the shelf to buy that product, to pick up that thing from the shelf, that thing should be available over there. And in order to ensure that, जो replenishment का process है, कि अब अगर एक for example XYZ bakers के पास आप कह सकते हैं bread अगर ख़त्म हो गई है, तो that would mean कि next time वहाँ पे bread available हो as soon as possible, वो ख़त्म ना हो. इन मैनी केसेस आप कभी जाएं तो शॉप्स के पास आपके, इवन अगर हम खाली ब्रेड की बात कर लेते हैं तो पिछली ब्रेड मौजूद होती है, तो अगला स्टॉक उनके पास अवेलेबल होता है, रिप्लेनिश कर लेते हैं उसको, ताकि वो उसमें रिटेलर का इतना इंटरेस्ट ना हो मे बी, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूट भी प्रोवाइड कर रहा है उसके, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उस मैन्युफैक्चरर का होता है जो उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो चाहेगा कि मेरी प्रोडक्ट हर वक्त अवेलेबल शेल्फ पे रिप्लेनिश्ड रहे, अवेलेबल रहे. तो बेसिकली जो इन्वेंट्री रखी इसलिए जाती है दैट आप स्टॉक्स में चीज़ एक्सेस में थोड़ी सी प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री में रखेंगे, एक तो डिमांड मीट करने के लिए. तो डिमांड मीट करने का मकसद ही ये है कि इट प्रोवाइड्स इमीडिएटसी इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कि जब भी प्रोडक्ट चाहिए तो इमीडिएटली अवेलेबल होती है. दैट इज़ वाई इन्वेंट्रीज मैनेज की जाती हैं. फिर हम वो ऑब्वियसली इन्वेंट्री कॉस्ट परस्पेक्टिव भी आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले भी हमने किया हुआ, क्या इधर लॉस्ट कस्टमर की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है हमें, या हमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट से ज़्यादा पड़ती है. हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपेक्ट में डिफरेंट ये वाले फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं. वो सारी चीज़ें लिंक होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. एनकरेजिंग प्रोडक्शन, परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज. हमने ट्रांसपोर्टेशन में बार बार कहा था कि फुल ट्रक लोड भेजना में सस्ता पड़ता है.
परचेजिंग तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आप लोगों को बताया था. देयर आर कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन वी टॉक अबाउट परचेजिंग, कि जब फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करने जाता, तो इन दैट केस वो उसको बल्क में सस्ता पड़ता. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, आप बाटा कंपनी की बात कर लें और सर्विस कंपनी की बात कर लें, वो पाकिस्तान में शूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आउटसोर्स की हुई होंगी. फॉर एग्जांपल वो जो वैक्सीन है वो किसी से लेते होंगे, या लेदर जो है वो किसी से लेते होंगे. उसके अगेंस्ट आप फॉर एग्जांपल मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ छोटे स्केल का, या फॉर एग्जांपल आप किसी स्मॉल स्केल कॉबलर की बात कर लें, जो अगर फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि दोनों ने सिमिलर क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो जिस कॉस्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल परचेज करेगा और जिस कॉस्ट के ऊपर वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे बाटा और सर्विस वाले, देयर वुड बी हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन देम. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अगर आप भी फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जाते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ वो अक्सर शहरों के अंदर ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जहाँ पे होल सेलर बैठे होते हैं. वो होल सेलर आपको प्रोडक्ट देते हैं और आप क्यों वो आपको सस्ती मिलती है बाकी रिटेलर से? रीज़न कि वो बल्क सप्लायर होता है. अगर आप बल्क में चीज़ उठाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, राइट? अब अगर इसी से एसोसिएटेड आप वो वाली चीज़ देख लें जो मैं भी कह रहा हूँ, वो उसको आप मैग्नीफाई कर दें उसको मल्टीपल टाइम्स. क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब एक चीज़ उठाता है तो वो फिर ऑब्वियसली आप उस लेवल पे तो नहीं उठाएंगे, वो तो रॉ मटेरियल उठाएगा और कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएगा. तो इसका मतलब है उसको कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है. अब वो क्यों उठाएगा? ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके. एक तो वो खुद उसकी भी इन्वेंट्री मेंटेन करेगा उन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए. फिर उसको बल्क बाइंग सस्ती पड़ती है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ की इन्वेंट्रीज का आप ज़रा एस्पेक्ट देख लें आप, कि वो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस उसको अपनी रॉ मटेरियल भी बल्क बाइंग के केस में सस्ता पड़ेगा, राइट? उसके लिए उसको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी. और वो कितनी को इन्वेंट्री मेंटेन करेगा? कुछ उसको प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी. जब प्रोड्यूस कर देगा तो उसको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? दोनों साइड्स की इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ेगी. फिर आपको प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जितना ज़्यादा एक प्रोडक्शन रन एफिशिएंटली रन कर लेगा. अपने देखिए प्रोडक्शन रन्स आर टेक्निकल एस्पेक्ट, नो डाउट, लेकिन डिस्पाइट वी नो वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट उसका है उसका प्रोडक्शन रन की लेंथ. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर लेगा, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन में है कि फुल ट्रक लोड सस्ता पड़ता है, कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना प्रोड्यूस करता है सस्ता पड़ता है. प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जिस लेवल पे वो प्रोड्यूस करता है अप टू अ सर्टेन लेवल उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, राइट? जैसे मैंने आप लोगों को कार प्लांट की एग्जांपल दी थी किसी लेक्चर में, कि 1000 रुपीज़ का एक कार प्लांट लेके आए, 1 मिलियन का एक कार प्लांट लेके आए और उससे एक कार बनाए, वो 1 मिलियन की पूरी पड़ेगी प्लस द वेरिएबल कॉस्ट. 2 कारें बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 5 मिलियन. अगर आपने वो प्लांट लेके आया और आपने 1 मिलियन उसका फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लीज पे आपके पास, आप उसे एक गाड़ी बनाते हैं 1 मिलियन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. 2 गाड़ियां बनाते हैं 5 मिलियन ईच कार प्लस वेरिएबल कॉस्ट. 4 गाड़ियां बनाते हैं 0.25 मिलियन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो वो डिवाइड हो जाता है. इसी तरह जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनकी कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ. अलाउ फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स, खैर ये तो मैंने ऊपर हेडिंग पे इतनी बातें कर दी कि वो सारी चीज़ें बेसिकली नीचे डिस्कस्ड हैं. अलाउ फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स, बफर अगेंस्ट डिमांड फ्लक्चुएशंस. जब आप इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं, अब हम एक प्रोडक्शन की बात करें उसकी कॉस्ट तो प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो एग्जिस्ट करती हैं. जब आप लॉन्ग प्रोडक्शन रन करते हैं उसको दूसरा एडवांटेज कि जो डिमांड फ्लक्चुएशंस आती हैं, जब आप इन्वेंट्रीज इधर फिनिश गुड्स की मेंटेन करते हैं तो डिमांड फ्लक्चुएशंस बफर हो जाती हैं. बफर अगेंस्ट डिमांड फ्लक्चुएशंस, टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट्स. ये वो पीछे वाली बात जो मैं आपको उसमें बता रहा था कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड है, कि जो आप लार्ज क्वांटिटी परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे, राइट? अलाउज फॉर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज फ्रॉम लार्ज शिपमेंट साइजेस. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. हम लोग इसमें काफ़ी अब हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है कि फुल ट्रक लोड के रेट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस दैन ट्रक लोड के रेट्स ज़्यादा होते हैं. तो जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी में शिप करेंगे अपने वेयर हाउसेज की तरफ, हम ज़्यादा क्वांटिटी रॉ मटेरियल की मंगवाएंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल ट्रक्स में लेके आएंगे इधर, तो डेफिनेटली हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी क्योंकि हम फुल ट्रक लोड पे ऑपरेट कर रहे होंगे. देन एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट प्राइस चेंजेस, कि जब प्राइसेस क्या हो, एक क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अलाउज परचेजिंग टू टेक प्लेस अंडर मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस. जब आप देखते हैं कि प्राइसेस, हम भी इसी तरह ही काम करते हैं,
जब हम कई दफ़ा देखते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लग गया, तो व्हाट वी डू इज़ वी गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट एक्सटेंसिवली, हमारे पास स्टॉक करके रख लेते हैं थोड़ी बहुत। मतलब ज़ाहिर हम कमरों के कमरे तो नहीं फिल कर सकते अपने घर के, हमारे पास कोई बड़े बड़े वेयर हाउसेस तो नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि किचन सप्लाईज के केसेस में अक्सर लोग ऐसे करते हैं। आप फिर रहे हैं मार्केट में और आपको नज़र आता है जी कि फॉर एग्जांपल जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर डिस्काउंट है, तो आप एक की जगह 2-3 डब्बे उठा लेंगे। दिस इज़ टू गेट अनलेस द प्रोडक्ट इज़ एक्सपायरिंग, वो तो टोटली डिफरेंट केस है ना। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं तो आप ऑब्वियसली, तो इसी तरह जब प्राइसेस फेवरेबल होते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इस तरह बड़े बिजनेस हैं, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस तो आती रहती है ना रेगुलर। हम तो वो मेन्यू प्राइसेस देखते हैं, लेकिन जब ये लोग आपस में नेगोशिएट करते हैं तो वो फिर उनके सप्लाई एंड डिमांड, ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं फॉर एग्जांपल। अब ऑयल की प्राइसेस नीचे चलेंगी तो लेट्स बाय मोर, तो उसके लिए फिर इन्वेंट्रीज आप मेंटेन करते हैं। फिर ये एक एडवांटेज है कि जिस वजह से लोग, ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग इन्वेंट्रीज रखते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज एंड डिमांड, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, अलाउस फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। Provide a measure of safety to keep operations running when demand levels and lead times cannot be known for sure. हम वो अनसर्टन डिमांड्स उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वो लंपी डिमांड केस इज टोटली डिफरेंट, उसको ज़रा साइड पे रख के सोचिएगा। फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशंस आती हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की डिमांड टेम्परेरी ड्यू टू सर्टन रीजंस नीचे चली गई, फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर लेट्स से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है या पेट्रोल की हड़ताल कर रहे हैं, एनीथिंग, और जब भी आपके ख्याल में जब फ्यूल के स्ट्राइक्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके डी चौक के ऊपर जलसे शुरू हो जाते हैं, दैट आल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्ट्स। आपके टैंकरों की हड़ताल हो जाती है तो फ्यूल की सप्लाईज कम हो जाती हैं, तो उन केसेस में लोग पेट्रोल आराम एहतियात से इस्तेमाल, वट एवर द पॉइंट इज कि प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो सकती है ड्यू टू सर्टन रीजन, और ज़्यादा भी हो सकती है, फ्लक्चुएट दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं आपकी फोरकास्टेड वैल्यू से। तो फिर आप उसके लिए आपके इन्वेंट्रीज आप मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री बफर करता है उसको, अगर डिमांड कम भी होगी तो आप इन्वेंट्री में स्टॉक कर सकते हैं, कल को जब डिमांड ज़्यादा भी होगी तो आप इन्वेंट्री से आप उसको मीट कर सकते हैं। एडवांटेजेस कि अपने प्रोडक्शन रन को आप श्रिंक मत करें, जो आपने एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के परस्पेक्टिव में एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनाया हुआ है कि ये इतना आपने लेंथ करेंगे, जैसे इतनी प्रोडक्ट्स, एक बैच इतने फॉर एग्जांपल मिलियन यूनिट्स का प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आप डिमांड की फ्लक्चुएशन में उसको आधा या क्वार्टर नहीं कर सकते। आप उस प्रोडक्शन रन को कंप्लीट कर दें, वो इन्वेंट्रीज में रख दें चीज़ें, एज लॉन्ग एज कि कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि आप फॉर एग्जांपल स्वेटर्स प्रोड्यूस करें, तो वो भी अगर स्टॉक की जा सकती है तो कॉस्ट तो पड़ेगी, लेकिन कुछ केसेस में स्टॉक की जा सकती है। बट द पॉइंट इज कि प्रोडक्शन रन को मत छेड़ें। द एम इज, इन्वेंट्री का ये एडवांटेज है कि जो डिमांड की फ्लक्चुएशन है ऊपर है चाहे नीचे हैं, वो इन्वेंट्री में चली जाएंगी, लेकिन आप प्रोडक्शन रन अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर हो रही है, तो उसको मत आप डिस्टर्ब करें, क्योंकि प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग और प्रोडक्शन रन की भी अपनी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। Then act as a hedge against contingencies, buffers against such events as strikes, fires and disruptions in supply. ये लें, ये मेरी बात आगे जाके रिपीट होगी। बेसिकली आपके जब स्ट्राइक्स आ जाते हैं, फायर्स हैं फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीजन के डिसरप्शंस इन सप्लाई आ गए, फॉर एग्जांपल कोई रीज़न भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट एक एरिया में प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फ्लड्स की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए, कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई, कोई डैमेजेस हो गए, कोई लोग हड़ताल पे चले गए, जंग स्टार्ट हो गई, तो इन्वेंट्रीज आपको बफर करती हैं उसमें, यानी कि आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं और आप अभी भी सप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम कि सऊदी अरब से पाकिस्तान आनी है या पाकिस्तान से सऊदी अरब जानी है, तो वहाँ पे इतना वेयर उसमें स्टॉक अवेलेबल है कि एटलीस्ट अगर एक दिन का या कुछ टाइम पीरियड का गैप आता है, एक लिमिटेड स्केल का, आप नहीं डिलीवर कर सकते, तो वहाँ से इन्वेंट्रीज उसकी डिमांड मीटअप करते हैं, बाद में एक्स्ट्रा सप्लाई करके उसको पूरा कर लेते हैं। इसी तरह आपका प्रोडक्शन रन भी इफेक्ट नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन रन में आप उसको प्रोडक्ट को मूव लेके चल रहे हैं उसको, तो आप वो बैच प्रोड्यूस कर दें, अगर वो नहीं बिक रहा है इस वक्त तो बाद में बिक जाएगा, आप उसको इन्वेंट्री में जाके स्टोर कर दें। लेकिन अगर उस प्रोडक्शन रन को छेड़ेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। राइट, आई होप you understand, grasp this concept. These are the reasons for why business entities keep inventories. I'm not saying कि ये कोई बहुत वो रॉकेट साइंस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन these concepts हम लोगों को खासतौर पे इसलिए आसान लग रहे हैं कि we have discussed them time and again. हम लोग इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस करते आए हैं मुसलसल, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम लोकेशन में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम कस्टमर सर्विसेज में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के शुरू में ही बताया था। अब हमारे पास टाइम ख़त्म होने वाला, सो लेट अस गो टूवर्ड्स रिविजन। हाँ, दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड, राइट।
We started from actions when forecasting is not appropriate. जब आप for example forecasting is not appropriate या collaborative forecasting का aspect उस वक्त आता है जब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप quantitative, in certain cases it is highly possible that quantitative forecasting techniques or historical data is either not available or it is not, आप कह सकते हैं applicable. इन सर्टन केसेस आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते सिरे से, आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते. इन सर्टन केसेस आप यूज़ कर सकते लेकिन उन पर डिपेंड नहीं कर सकते. बोथ ऑफ द केसेस. तो आप सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, सीक, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने दूसरे चैनल मेंबर के साथ. अप्लाई फोरकास्टिंग मेथड विद कॉशन. लेकिन ये कि अगर एरर जो है उसके अंदर आएगा तो वो इतना क्रिटिकल नहीं है. दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट. डिले सप्लाई रिस्पॉन्स अंटिल डिमांड बिकम्स क्लियर. डिले करना, आगे भी हमने देखा था ये. शिफ्ट डिमांड टू अदर पीरियड्स फॉर बेटर रिस्पॉन्स, अगेन डिले वाला एस्पेक्ट. डेवलप क्विक रिस्पॉन्स एंड फ्लेक्सिबल, ये हमने आगे जाके डिस्कस किया था. जब लंपी फोरकास्ट आती है तो फिर कोलैबोरेटिव मेथड आ जाते हैं कि अब टू हेड्स आर बेटर देन वन वाला कॉन्सेप्ट. द एम इज़ टू रिड्यूस द फोरकास्ट एरर, या फोरकास्ट की एक्यूरेसी इंप्रूव करना. इसमें ये हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको कैसे यूज़ करना, किस तरीके से डिलीवर करना, किस तरीके से प्रेजेंट करना, ये सारे वो वाले एस्पेक्ट्स हैं. दिस इज़ बेसिकली कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग. फिर हमने अनसर्टन डिमांड का, वो जो पीछे भी पॉइंट थे उसे सिमिलर के सबसे पहले आप जब प्रोडक्ट की डिमांड हाईली अनसर्टन होती है, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन डिले द फोरकास्टिंग. यू कैन प्रायोरिटाइज द सप्लाई कि जिन प्रोडक्ट्स की डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है ज़्यादा सर्टन है उसको पहले बेसिकली प्रायोरिटाइज कर देते हैं. अप्लाई टू प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट. सप्लाई चेन प्रोसेस को फ्लेक्सिबल रखें और क्विक रिस्पॉन्स की तरफ आ जाएं. ये चीज़ें हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. फिर हम आगे इन्वेंट्री की तरफ, जिसमें ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है. एवरी मैनेजमेंट मिस्टेक एंड्स अप इन इन्वेंट्री. जो भी गलती होती है उसे इन्वेंट्रीज में एंड रिजल्ट वो आ जाता है. हम इन्वेंट्रीज को डिस्कस करने जा रहे थे. सबसे पहले इन्वेंट्रीज में आता क्या क्या, दैट इज फिनिश प्रोडक्ट्स, गुड्स इन वेयर हाउसेज, वर्क इन प्रोजेक्ट्स, गुड्स इन ट्रांजिट, स्टाफ हायर टू मीट सर्विस नीड्स. जब तक ऐसी वो सारी चीज़ें जिनको आपने बनाया है लेकिन अभी वो सेल का वेट कर रही हैं, दोज गुड्स आर ट्रीटेड एज इन्वेंट्रीज. फिर हमने ये ओवर लेआउट डिस्कस किया कि इन्वेंट्रीज कहाँ कहाँ पे रखी जा सकती हैं, इन्वेंट्रीज होती कहाँ कहाँ है. मटेरियल सोर्सेज जब एक्वायर कर लेते हैं, इसमें जो पिछले पॉइंट में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि चाहे वो ओन्ड है या उसका फाइनेंशियली कंट्रोल्ड है, मटेरियल सोर्सेज इनबाउंड जो ट्रांजिट में आ जाती हैं प्रोडक्शन के ऊपर, फिर आउटबाउंड, फिर फिनिश गुड्स वेयर हाउसिंग, अनलेस के कस्टमर उसको एक्वायर कर लेता है. देन फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस की आज के दिन में, देयर आर रीजंस फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगेन एज आई सेड, might be part of the exam or might be part of आप कह सकते हैं your quiz and assignments. I really like this topic. बड़ा concretely step by step उसने सारे aspects को इन्वेंट्री के एक्सप्लेन किए. इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज एक इसलिए ताकि कस्टमर को जब प्रोडक्ट नीडेड हो प्रोवाइड की जा सके, इस वजह से इन्वेंट्रीज रखते हैं. फिर आप प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट करने के लिए, जितने मासिव लेवल पे ये तीनों काम होंगे उतनी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी बेसिकली, तब आप इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे होते हैं. देन दे एक्ट एज प्राइस हेजेस, कि जब प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस होने वाली होती हैं, हो रही होती हैं, तो आप जब प्रोडक्ट सबसे आप एंटिसिपेट करते हैं सबसे कम प्राइस, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो ये जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो यू कैन परचेज मैसिव अमाउंट्स, अपने पास आप लोग रख लेते हैं. प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज इन डिमांड, प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ सेफ्टी टू कीप ऑपरेशंस रनिंग व्हेन डिमांड लेवल्स एंड लीड टाइम्स कैन नॉट बी नोन फॉर श्योर. कि आप अगर डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, अगेन एसोसिएटेड विद आपका वो ऊपर वाला जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला प्रोडक्शन वाला पॉइंट है उससे भी एसोसिएटेड है ये. बिकॉज आप इफ़ यू कैरी इन्वेंट्रीज दैट वुड मीन कि आप प्रोडक्शन रन्स को इंश्योर कर सकते हैं और आप अनसर्टन डिमांड ही मीट कर सकते हैं. एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट कंटीजेंसीज, के आपके स्ट्राइक्स, फायर, इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो फिर अपने नहीं आपका प्रोडक्शन रन तेज़ बड़े करने पड़ेंगे ना छोटे करने पड़ेंगे. अगर इन्वेंट्रीज हैं आप उससे स्टॉक को, आप रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड को मीट कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस टुडे. Moving on, we would again discuss inventories in the coming lecture. Hope to see you. I hope you understood what I've discussed. Take care. Allah Hafiz.